قاسم کو بتا رہے ہیں اب تمہارے پاس اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو یتیم ہے، جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر گریبان چاک کر دیا، آستینوں کو الٹ دیا، کہا جاؤ میرے لال۔ جناب قاسم نے ارزق شامی کے چاروں بیٹوں کو قتل کیا، خود ارزق شامی کو قتل کیا۔ ارزق شامی آپ نے سن لیا، یہ وہ تھا جو 1000 سواروں سے اکیلا لڑ لیتا تھا، اس کے چاروں بیٹے 500 سے لڑا کرتے تھے۔ ایسے شہ سواروں کو جناب قاسم نے قتل کیا، اور اس کے بعد وہ منزل آئی ہے کہ عمر سعد ابن ابی وقاص نے کہا ارے یہ قتال العرب کا پوتا ہے، ارے اس کو چاروں طرف سے گھیرو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب جناب قاسم خیمہ حسینی کی طرف سے بدر آ رہے تھے تو لوگوں میں ایک ہنگامہ تھا۔ بہت سے ہمارے فوجیوں نے کہا ارے ایسا لگا جیسے بادلوں میں سے چاند نکل آتا ہے، ہمیشہ ارے دشمنوں کی نگاہ برائی پہ ہوتی ہو۔ اے قاسم، ارے جس کو دشمن بھی چاند کہتا ہو، ارے ماں کیا کہتی ہوگی، ارے بہنیں کیا کہتی ہوں گی، چچا اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہوگا۔ وہ منزل آئی کہ چاروں طرف سے شہزادہ گر گیا، ارے گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال دی، ارے تلواریں چلنا شروع ہوئی، فَيُقْتَلُونَ عِرْبًا، ارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ بچے نے پکارا چچا ارے میری مدد کو آؤ۔ حسین پہنچے، مگر جب پہنچے تو قاسم کا لاشا گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا۔ ارے جس طرح علی اکبر کی لاش پہ گرے اسی طرح قاسم کے ٹکڑوں پہ گرے۔ کہے میرے لال، ارے چچا کے لیے بڑی مصیبت ہے، ارے تو مجھے پکارے، چچا کو اتنی دیر لگ جائے کہ تیری مدد نہ کر سکا۔ ابا کے دامن کو بچھایا، ٹکڑوں کو جمع کیا، خیمہ مطہر میں آئے، بیویوں میں حلقہ ہوا، آواز دی ام فروا ارے اپنے لال کو لے لو، ارے بیویوں میں ماتم بپا ہوا۔ اس کے بعد جناب عباس علمدار نے یہ دیکھا کہ اب لشکر میں کوئی باقی نہیں رہا ہے، امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں۔ یہ وہی عباس ہیں جو شب عاشور جناب عباس نے ایک نقشہ مرتب کیا، حبیب ابن مظاہر کو دکھایا اور مسلم ابن اوفدہ کو دکھایا۔ دونوں کا عباس ایسا لگتا ہے کل شام کا کوئی فرد فرید باقی نہ رہے گا، آؤ چلو امام زین العابدین کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں پر آئے، علی اکبر کو ساتھ لیا۔ جس وقت امام زین العابدین نے جنگ کا نقشہ دیکھا تو ایک مرتبہ چچا کو دیکھتے رہ گئے، کچھ مسکرائے، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹے تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ کہا چچا عباس نقشہ تو آپ نے بہت اچھا بنایا ہے، مگر بابا جان کو دکھا لو، میرے بابا جان کو دکھا لو۔ ارے یہ چاروں افراد جب حسین ابن علی کے پاس آئے، جناب عباس نے جنگ نامہ پیش کیا، آپ نے نقشے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ عباس نقشہ بنانے کی ضرورت کیا تھی بھیا پاک، ارے کل کا نقشہ تمہارے آقا نے بنا لیا ہے، بھیا تمہیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ بس عباس علمدار آئے، وہ کہتے آقا مجھے اب مرنے کی اجازت دیجئے۔ کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ کہا بھائی، کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کی میں علم برداری کروں؟ ارے لشکر تو کٹا پڑا ہوا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ لشکر میں چلا جاؤں، اور آپ بھی تو آنے والے ہیں۔ اور باب ازا امام حسین نے کہا خاموش ہو جاؤ، کچھ سنائی آپ کو دے رہا ہے؟ ہاں وہ ایک ہی آواز آ رہی ہے، الاتاش الاتاش، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ کہا سنا آپ نے کیا آواز ہے؟ جاؤ سکینہ کے پاس مشکیز سکینہ لو، دریا پہ جاؤ اور پانی کا انتظام کرو۔ درے خیمہ پر آئے، آواز دی کہاں ہے میری لاڈلی سکینہ؟ لاؤ ایک مشکیزہ لا کر دو، میں پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ مشک سکینہ جناب سکینہ مشک لے کے آئیں تو ایک جملہ کہتی ہے چچا چچا زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک گھونٹ مل جائے، میں بڑی مشک لے کے نہیں آئی ہوں، میں چھوٹی سی مشک لائی ہوں تاکہ جلدی بھر جائے۔ چچا دیر مت
करना, देखो जो मैदान में गया है ना वो वापस नहीं आया है। चाचा देर मत करना, बस मश्क आलम लेके बाहर निकले हैं। फरेरे को इमाम हुसैन ने देखा, उस पर लिखा हुआ था नस्र में अल्लाह की आयत। आपने कहा अब्बास ये फरेरा मुझे दो। फरेरे को लेके वो नस्र में अल्लाह की आयत को मिटाया और इन्ना लिल्लाह की आयत को लिखा। अब्बास अलमदार ने देखा, खैर मैदान कारजार में गए, एक नेज़ा लिए हुए हैं, फौजों को हटाया, दरिया में पानी भरा। मशकीज़ा बहुत ज़्यादा सूखा हुआ था, मशकीज़ा इतना सूखा था कि वो तर होने में बड़ी देर लगी। जनाब अब्बास ने उसको भरा, घोड़े से कहा तू भी पानी पी ले। कहा नहीं आका, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, मैं कैसे पानी पी लूँ। लिहाजा अब्बास वहाँ से चले। वहाँ पे कुछ दरख्त इधर उधर इक्का दुक्का था, वहाँ पर एक खजूर का दरख्त था। अब्बास अलमदार फुल स्पीड से आ रहे थे कि हकीम बिन तुफैल ने एक खजूर के पेड़ की आड़ लेके भरपूर वार तलवार का किया। अब्बास अलमदार का दायां बाजू मुनक़ता हुआ। शहजादे ने देखा ये अचानक क्या हुआ, जल्दी से मशके सकीना को और अलम को बाएं हाथ में लिया। थोड़ी दूर चले थे कि एक और वार हुआ, मशके सकीना बाकी बची, आपने सीने से लगा लिया। अलम गिर चुका था। एक मर्तबा मशके सकीना के तस्मे को अपने दावतों तले दबाया और टूटे हुए बाजुओं से उसकी हिफाजत करना शुरू की। आगे बढ़ रहे थे कि एक सनसनाता हुआ तीर अब्बास अलमदार की आंख में लगा। आपने चाहा कि निकालूं, मगर हाथ तो कता हो चुके थे, आंख से तीर किस तरह निकाल जाता। आपने सोचा कि थोड़ा सा सर को झुका लेता हूँ, दोनों घुटनों में तीर को पकड़ लूंगा और सर को बुलंद करूंगा तो तीर निकल जाएगा। हाँ बाबा साहब आप सुन रहे हैं, अब्बास ने यही किया, सर को झुकाया और तीर को घुटने से दबाया कि एक गुर्ज़े आहान अरे सर पे आके लगा। अब्बास से घोड़े पे संभला न गया, एक तीर आके मशके सकीना पे लगा, पानी बह गया। अब्बास ने आवाज दी मौला अपने भाई की मदद कीजिए, अपने गुलाम की मदद को आइए। हुसैन चले मगर कमर को थामे हुए आवाज दे रहे हैं, अब्बा तुम्हारे मरने से तुम्हारे आका की कमर टूट गई और जो चैन से सो रही थी आंखें वो अब सो न पाएंगी, जो खौफ से रहती थी आज उन्हें सुकून हो जाएगा। अब्बास अलमदार के जनाजे पे पहुंचे, भाई में रमक हयात थी, तीर को निकाला, कुछ मारूजात पेश नहीं करना है। आखिर में अलम और मश्क को लेके हुसैन इब्न अली खैमे मुतहर की तरफ चले। जनाब सकीना ने जब देखा कि अलम आ रहा है, अरे बच्चों को इकट्ठा किया, बच्चों घबराओ नहीं, अरे मेरा चचा पानी लेके आ रहा है, देखो वो मशके सकीना नजर आ रही है, देखो वो अलम अब्बास नजर आ रहा है। लेकिन जैसे करीब आए तो चचा के हाथ में अलम न था, अरे बाबा जान के हाथ में अलम था। अरे बच्चे आकर लिपट गए। सकीना ने कहा ए बाबा जान, अरे मेरा चचा क्या हुआ, सीने से बच्ची को लगाया। ए मेरे लाल सब्र करो। अब्बास की शहादत के बाद खुद जनाबे अली अकबर की शहादत है, उसके बाद 2 मिनट की शहादत और है। मैं करबला और मेहमान करबला, ज़मीन ने करबला पर मुस्तैद खड़ा हुआ है। अब्बास अलमदार के बाद जनाब अली अकबर आए मैदान कारजार में। जब जनाब अली अकबर गए हैं तो एक जंग ज़बरदस्त की है, मगर चेहरा इमाम हुसैन का बदल रहा था। जनाब उम्मे लैला ने फिर ने पूछा कि मेरे वालिद व वारिस का चेहरा मुतग़य्यर क्यों हो रहा है। कहा पूछो तो जाके, तो मालूम यह हुआ कि अली अकबर 3 दिन का भूखा प्यासा है और दूसरा जो पहलवान वो शेरो सैराब है। कहा उम्मे लैला से कह दो कि मुसल्ला बिछाए और 2 रकात नमाज़ अदा करे, अपने बच्चे के हक़ में दुआ करे। मैंने नाना से सुना है कि जो माँ अपने बच्चे के लिए मुसीबत में दुआ करती है वो कबूल होती है। अली अकबर मैदान से पलट आए, कहा बाबा जान मैं चाहता ये हूँ कि ज़रा सा पानी मिल जाए,
तो मैं बता दूं कि हैदर कर्रार का पोता क्या होता है। कहा मेरे लाल अपनी जुबान को मेरे दहन में दो। अली अकबर ने इमाम हुसैन के दहन में जुबान रखी कि फौरन खींच ली। ये भी तो हो सकता था हुसैन अपनी जबान रख सकते थे, लेकिन नहीं, हुसैन को बचपन का वाकया दोहराना था। ये अली अकबर ही नहीं है, शबी है, रसूल भी है। दोनों जबानों का एक खास मुफासलत हमेशा रही है। एक मरतबा कहते हैं या अबता हो अशद्दु अच्छा, ए बाबा जान आप बहुत प्यासे हैं, मैंने जहमत दी, अरे आप तो मुझसे भी ज़्यादा प्यासे हैं। कहा मेरे लाल मैदान में जाओ। अली अकबर दोबारा मैदान में आए, कुश्तों के पुश्ते लगाए, मगर वही हंगामा जब इकट्ठा हुआ, चारों तरफ से वार हुए। एक हसीन बिन नुमैर ने नेज़ा मारा, सीने में आके लगा। अली अकबर जमीन की तरफ आ रहे थे कि दोनों हाथ घोड़े की गर्दन में डाल दिए, आवाज दी या अबताहु मिन्नी अस्सलाम, बाबा जान मेरा आखिरी सलाम। हुसैन गिरते पर थे, अली अकबर के लाशे पे पहुंचे तो क्या देखा कि जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा है। सरहाने बैठ गए, सरहाने बैठे और एक जुमला कहते मेरे लाल किस हाल में हो। कहा बाबा जान सीने में दर्द बहुत है। जनाब अली अकबर के सीने में नेज़े की अली को हुसैन इब्न अली ने पूरी कुव्वत से निकाला। अब निकालता तो था मगर नेज़े की अली के साथ शहजादे का कलेजा निकल आया और जान कफर से उसी से परवार कर गई। हुसैन लेके चले, आवाज दिए बनी हाशिम के बच्चों, अरे बूढ़े बाप से बेटे का जनाजा नहीं उठ रहा है। अब ये आवाज़ बुलंद होना थी। जनाबे ज़ैनब करीब आए, भैया मैंने पाला है, अली अकबर को मैं ही उठा के ले जाऊंगी। अब कोई ऐसा नहीं था जो हुसैन की फिर इसमें कोई मुजाहिद बाकी हो। एक मरतबा आवाज़ बुलंद की, हल में नासिर यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। बस शोर गुल हुआ। एक मरतबा इमाम मजलूम ने कहा जनाब ज़ैनब से, ऐ ज़ैनब ये हंगा रुमाल से सेहरा साफ किया, इमाम की गोद में दिया और कहा बेटा अली असग़र, अरे बाबा जान का ख्याल रखना। मैदान कारदार में हुसैन आए, लोग समझ रहे थे कुरान से फैसला करना चाहते हैं, लेकिन जब बिल्कुल करीब पहुँचे तो क्या देखा कि इमाम ने जब अबा का दामन हटाया तो कुरान न था, सूरह कौसर की एक आयत थी। अली असग़र की शक्ल में इमाम ने फरमाया, ए कौम नाबकार, ये हो सकता है कि तुम्हारी नज़र में मैं गुनाहगार हूँ, मगर ये मेरा छोटा सा बच्चा है, ये किसी की नज़र में गुनाहगार नहीं है, किसी की कौम की नज़र में गुनाहगार नहीं है, किसी भी दौर में मुसलमान ने किसी भी दौर का ये जो है बच्चा जो है गुनाहगार नहीं है। अरे इसे थोड़ा सा पानी पिला दो, तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। और बाबे अज़ा इस मरतबा हुरमला बिन काहिल को तैयार किया गया, उसने से शोभा तीर इमाम हुसैन की तरफ फेंका, अली असग़र के गले पे आके लगा, बच्चे का मन का ढल गया। बाप ने पानी तो न था जो बच्चे को गुस्ल देता, अरे उसी खून में अपने चेहरे को तर किया जो बच्चा अली असग़र के बदन पे मर दिया और आवाज़ दिया कौन पेश किया, इसी तरीके से मैं क़यामत में अपने नाना से मिलूँगा। आखिर में कोई बाकी ना था। एक मरतबा बीवियों से कहा, ए बीवी अब कोई बाकी नहीं है, मैं सबसे अलहदा रुखसत नहीं चाहता, एक बड़े खैमे में इकट्ठे हो जाओ। इमाम हुसैन खैमे में आए, बीवियों ने हल्का बांध लिया। इमाम ने एक नज़र से एक बीवी को देखा, कभी ख्याल आता होगा ये उम्मे फरवा है, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम, मेरे बाद इनका क्या होगा, इनके बाजू में रसल बनेगी, कभी सकीना पे निगाह जाती होगी, मेरे बाद तमाचे खाएगी, गले में रस्सी बंधेगी। आखिर में इमाम हुसैन मैदान कारदार में आना चाहते हैं, अरे दामन को फैलाया, आवाज़ें परवरदिगार हुसैन का गम ऐसा नहीं है तुझे बीवियां बर्दाश्त करें, अरे मेरे गम में इन बीवियों को सब्र अता कर दे। हल्का टूटा, हुसैन खैमे से बाहर आए, अरे चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं, दाईं बाईं तरफ देखा कोई नजर न आया। जनाब ज़ैनब ने भाई को सवार किया, मैदान कारज़ार में आए, एक रज़ा पढ़ा, ए लोगों क्या मैंने तुम्हारे को कत्ल किया है, क्या शरीयत को बदला है, क्या दीन में बिदअत जारी की है, मुझे कत्ल क्यों करते हो।
सबकी एक आवाज आई, मुग़्ज़ल अभी तुम्हारे बाबा के बुग़्ज़ में, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। बस अजीज़ हुसैन ने तलवार को नियाम से निकाला। अच्छा तुम्हें मेरे नाना की हदीस जानी है, मेरे बाप का बुग़्ज़ जो है वो कुफ्र है। आपने हमला किया, कल्बे लश्कर पे हमला किया, फिर मैसरा पे हमला किया, मैमना को मैसरा पे पलट दिया। और जिस वक्त की तलवार चल रही थी और जनाब अब्बास का रुख किया, भैया अरे तुमने नक्शा बनाया था, अपने मजलूम भाई की जंग देखो। कासिम की तरफ इशारा किया, ए मेरे लाल कासिम, अरे चचा की जंग देखी, अरे तुमने न देखी जंग पिदर, अरे पिदर की जहाँ, ए मेरे लाल अली अकबर दान नहीं दोगे, टीले से खड़े पर ज़ैनब आवाज़ देती है, शाबाश मेरे भाई, ए ज़हरा के शीर, अरे तूने कमाल कर दिया, ए हैदर कररार के जाए, तूने कमाल कर दिया। बस एक मरतबा हातिब गैबी की सदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन हमारी बारगाह में आ जा। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, लोगों की जसातें बढ़ी, पहले तीर चला रहे थे, तीरों की बारिश खत्म हुई, तलवारों की और नेज़ों की बारिश हुई। फर्जंद ज़हरा जमीन पर आना चाहता है, अरे इधर से नेज़े उधर से नेज़े इधर लग रहे थे। एक मरतबा जमीन में करबला पे हुसैन गिरे, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला। बिन जज़लम ने ये रो कर सदा, क़त्ल मोहम्मद का नवासा हुआ, क़त्ल आया है यसरब का लुटा काफ़िला, आया है यसरब का लुटा काफ़िला। क़त्ल मोहम्मद का नवासा हुआ, क़त्ल दोष पे अहमद ने चढ़ाया जिसे, से छाती पे ज़हरा ने सुलाया जिसे, एक छाती पे ज़हरा ने सुलाया, शिमर लाई सीने पे उसके चढ़ा,